ایسی باتیں نہیں کرو خدا کے لیے۔ وہ احساس بے بسی اور ذلت سے جیسے رو پڑی تھی۔ اول روز سے جن آنکھوں میں اجنبی اکھڑا تاثر چھایا رہتا تھا وہ اس سمے ان آنکھوں میں چھائی نفرت اور تمسخر سے کئی درجے بہتر تھا، کیونکہ اسے اس کی چپتی ہوئی آنکھیں مار رہی تھی۔ ادھر آئیں، اس کی التجا کے جواب میں اس نے اس کی جانب دیکھا اور اس کی اب کے بنا کسی کے تبسم مخصوص سی سرد آواز گونجی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے جسم میں زخموں اور ذہنی تھکاوٹ کے باعث بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ جو بامشکل خود کو سنبھالے اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے حواس کھو دے گی۔ اس سے قبل کہ وہ ان دونوں میں سے کوئی کچھ بولتا، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ جو دروازے کی جانب بڑھ ہی رہی تھی، اچانک آواز پہ جیسے اچھل سی گئی۔ اس نے گردن گھما کے دیکھا تو وہ دروازہ کھول کے ڈاکٹر ارتضیٰ ہاتھوں میں اپنا میڈیکل باکس لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے ذوالنورین نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا، جبکہ وہ ضلع کی طرف متوجہ ہوئی جو کمرے میں ایک سائیڈ پر کھڑی قابل ترحم دکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ بیٹا، اس کے نرمی سے ہاتھ تھام کے انہوں نے اسے صوفے پہ بٹھایا تھا اور بنا کچھ کہے اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ بابا، ڈاکٹر صاحب نے جب اس کے رخسار پہ لگے ٹانکے جو معیز کے تشدد سے بگڑ گئے تھے، خون آلود ہو چکے تھے، اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو مارے تکلیف کے اس کے ہونٹوں سے کراہ کی صورت میں باپ کی کا لفظ ہی نکلا تھا جو اس کی سن کے ایک دم سے تڑپ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی فٹافٹ سے بینڈیج کی، اس کی سسکی اور لفظ بابا پہ بیڈ پہ نیم دراز ذوالنورین جو کہ قصداً بے نیازی برت رہا تھا، اس نے بے ساختہ گردن گھما کے سوپوں کی جانب دیکھا جو جہاں زور سے اپنی آنکھیں مٹھیاں میچی ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھی اپنا رخسار صاف کروا رہی تھی۔ اسلامیہ اس کے زرد پڑتے چہرے پہ اس قدر ملاحت تھی کہ چند لمحات قبل خود پہ چھائے احساسات سے برطرف اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا نہ سکا تھا۔ یہ میڈیسن کھا کے کچھ دیر ریسٹ کرو تاکہ آپ کے اعصاب پر پرسکون ہو اور آپ کے زخموں کو بھی آرام ملے۔ ابھی میں آپ کو انجیکشن لگا دیتا ہوں تاکہ درد کی شدت میں کمی آ سکے۔ اسے میڈیسن تھماتے ہوئے انہوں نے انجیکشن تیار کرنا چاہا تو ضلع کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ اپنی عمر کی 25 بہاریں دیکھ چکی تھی، لیکن وہ اس لمحے سے دورانیے میں خود کو اتنا مضبوط نہ کر سکی تھی کہ وہ پرسکون ہو کے انجیکشن لگوا سکے۔ مگر اس سمے اس نے اپنا خوف کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا، کیونکہ یہاں ابراہیم صاحب موجود نہ تھے جو اس کے خوف پہ اسے سہارا دیتے۔ ان کے انجیکشن تیار کرنے تک وہ خود کو انجیکشن کے لیے پوری طرح تیار کر چکی تھی، لیکن لاکھ کوشش کے بعد جب سرنج اس کے بازو سے ٹکرائی تو اس کی بلک شگاف چیخ کمرے میں گونج اٹھی، اور اس کی اس قدر بلند چیخ پہ ذوالنورین نے جھٹکا کھا کے اس کی جانب دیکھا جو آنکھیں میچے انجیکشن لگوانے کے بعد اپنا بازو مسل رہی تھی۔ ایک انجیکشن پہ اتنا کون چیختا ہے؟ اس کی حیرانگی اس وقت اپنے بیگ پہ تھی، تبھی وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تمہاری بیوی؟ ڈاکٹر ارتضیٰ کے برجستہ جواب پہ ضلع نے جو آنکھیں کھولے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، گھبراتے ہوئے فوراً پلکیں جھکا گئی اور اس کی گرتی پلکوں کی حرکت گہری نگاہوں سے تکتے کے بعد ڈاکٹر ارتضیٰ کی جانب متوجہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ ریسٹ کرو ابھی۔ ضلع کو دوبارہ سے ہدایت دینے کے بعد ذوالنورین سے معمول کے چند لمحے جملے بولنے کے بعد کمرے سے نکلے تو کمرے میں ایک دفعہ پھر سے وہی تاثر رقص کرنے لگا تھا جو ضلع کے اعصاب پہ بھاری پڑ رہا تھا۔ ریسٹ کیجیے فی الحال مس ابراہیم، کیونکہ مجھے ہمیشہ چاقو چوبند دشمن پہ وار کرنے میں ہی لطف آتا ہے، اس لیے کل سے حساب کتاب شروع کروں گا۔ اس کی میڈیسن اور سکون آور انجیکشن کے زیر اثر بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن وہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ہی اس کی بات کو صحیح سے سمجھ نہ سکی، کیونکہ ڈاکٹر ارتضیٰ جان بوجھ کے اسے ایسی میڈیسن دے کے گئے تھے کہ وہ ذوالنورین میر کے اس زخمی روپ سے برسوں سے واقف تھے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ روپ ضلع ابراہیم دیکھے۔ تبھی وہ گرم لوہے کو پرسکون کرنے کے لیے اس لمحے ایک مناسب بندوبست کر کے جا چکے تھے۔ دوسری جانب گزشتہ بہت سی راتوں کی مانند اس پہ یہ رات کھلی آنکھوں میں تمام ہوئی، جبکہ صوفے کی پشت سر ٹکائے ضلع زخمی وجود پرسکون نیند کے زیر اثر سانسیں لے رہی تھی۔ 3 سیٹر صوفے پہ روبہان چند انچ کا فاصلہ بنائے محتاط سی گود میں لیپ ٹاپ لے کے بیٹھی گردیزی ہوش کے مکینوں سے محو گفتگو تھی۔ بھائی نے گفٹ کیا دیا آپ کو؟ زیمل، جو سب سے زیادہ اس بابت جاننے کو بےتاب تھی، اور اس نے تیسری دفعہ اپنا سوال دہرایا تو مائرہ بیگم کی بات سنتی آپ گرنے کا ربط پھر سے ٹوٹا۔ خدا کے لیے زیمل، ہمیں پہلے بات تو کر لینے دو۔ یہ ندیدوں کی طرح گفٹ کے بعد میں دے نہ لینا تم مشل جو مائرہ کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی تھی زیمل کے بیچ میں ٹوکنے کی طرح بری طرح تل ملا اٹھی تھی۔ 10 منٹ سے مسلسل آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہیں، زیمل نے روحان سے انداز میں جواب دیا تو اس نے سب کی نوک جھونک پہ مسکراتی آپ گنے نے اپنی گلائی سکرین کے سامنے کرنی چاہی جب اس کے سامنے بیٹھے۔ ربحان نے سرت سے اس کی گلائی اپنی گرفت میں لے کے
वापस सोफे पर रखी थी। भाई ये मसनूई कैमरों में आप सब लोग मेरी मिसिस के गिफ्ट को अपने पहने देख के कैसे सराह सकते हैं, इसलिए गिफ्ट की रुनुमाई हमारे आने पे होगी। उसकी कलाई को गिरफ्त मिली है। वो अपने मखसूस बुलंद अंदाज में आप गिने की गर्दन खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। यूं मत देखें, मेरी मम्मा रवायती सास साबित होंगी तो बेटे को ऐसे घूरने पे बहू के लाख महाज खोलेंगी। उसकी निगाहों को महसूस करके अपनी चमकती निगाहें उसकी आंखों में गाड़ते हुए इसी अंदाज में कहा तो जहाँ गर्देजी हाउस में कहकर बुलंद हुआ था, रभान तंग नहीं करो मेरी बेटी को। सायरा बेगम ने आप गिने के हजल चेहरे को देखते हुए बेटे को तंबीह की तो उसने सादमंदी से सरखम किया था, जी बेहतर, मैं इनको तंग करने की जरूरत कैसे कर सकता हूँ भला, फर्माबरदारी से कहते हुए उसने वापस सोफे की पूंछ से टेक लगा ली तो आप गिने पुरसकून सी सांस खारिज करने के बाद वापस उन लोगों की जानिब मुतवज्जह हुई थी और एकदम उसका सांस रुका था। साथ बैठे रभान की मजबूत उंगलियां बड़ी खामोशी के साथ सिरसराती हुई उसकी कमर पर रेंगती उसकी सांसों के रिदम को मुतासिर कर रही थी। भाभी, आपने जवाब नहीं दिया। अदन न जाने उसे क्या पूछ रही थी जो उसके चुप होने पे उसने दोबारा उसे पुकारा तो वो चौंकी। ओ हाँ सॉरी, मैं उसकी पुकार पे संभलते हुए उसने उसे जवाब देना चाहा था जब उसकी सरसराती उंगलियां उसके पहलू पे पहुंची तो उसकी होंठों से बेसाख्तगी में मदम सी चीख बुलंद हुई। अपनी सास को समझाइए मिसिस कि अगर इनका बेटा आपको तंग नहीं करेगा तो पीर साईं को पनाना कैसे बनाएगा, उनके अपने घर की कलकारियां कैसे गूंजेगी। वो बोल ही रहा था कि आप गिने के मदम से चीख किसी के नोटिस में ना आई थी। तभी ना महसूस अंदाज में उसकी जानिब झुका और बेबाकी से अल्फाज अदा करता हुआ उसकी हथेलियां नम कर गया, जबकि खूबसूरत उसके अल्फाज पे जैसे भाप छोड़ने लगा। मम्मा, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। आप रबान से कहें कि मुझे आप लोगों के पास छोड़ दें। उसके कहे अल्फाज इसकी हालत इस कदर गैर कर दी थी कि जबकि लहजे में छलकती अटल बाकी इस कदर खौफजदा कर दिया गया था कि वह अचानक ही बहुत बेरब्त अंदाज में बोलती न सिर्फ उन लोगों को बल्कि साथ बैठे रबान को भी हैरान कर गई थी। हमारे साथ ही रहना है आपने हमेशा, ये तो आपके घूमने फिरने के दिन है ना, तो इन्हें एंजॉय कर लो, बाद में ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं। सायरा बेगम ने संभलते हुए इस ऑकवर्ड सी की सिचुएशन को तोड़ने की कोशिश की थी। नहीं, मैं यहाँ बोर हो चुकी हूँ, मुझे वापस आना है। वो जो ये चाहती थी कि रबान उसे वापस पीर हवेली छोड़ाए क्योंकि उसके रस्म खत्म हाथमे के लिए रबान या उसके घर वालों को किसी तकलीफ का शिकार नहीं कर सकती थी। वो अपने घर वालों को जानती थी, अपनी रवायात इक़्तिदार से टकराने वालों के साथ किस कदर भयानक अंदाज में पेश आते हैं। तो रबान ने उन्हें दी भी बड़े कड़े अंदाज में थी शिकस्त, इसलिए वो वापस जाना चाहती थी। लेकिन गुज़िश्ता चंद ही दिनों में उसकी कुर्बत बताए गए पलों में उसकी शख्स की बेबाकी और शिद्दत के इस कदर अजीम मुजाहरे देख चुकी थी कि अब वो चाहती थी कि पीर हवेली ना से उसे कम से कम अपने घर ज़रूर ले चले ताकि वहाँ शायद वो सब की मौजूदगी के बायस अपने बेबाक और ढीठ हरकतों से बाज आ जाए। तभी वो इस वक्त बोल उठी, अच्छा ठीक है रबान, आप गिने ठीक कह रही है, बहुत दिन हो चुके हैं, इसीलिए बहू को घर लेके आओ, वापस आ जाओ। अब वैसे भी बीजान की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी घबराई हुई शक्ल देख के सारा बेगम ने रबान को हदायत दी तो उसने फ़कत सर हिलाने पे इक्तफा किया और फिर चंद एक बात करने के बाद उन्होंने गाल बंद कर दी तो आप गिने ने फ़ौरन से बेशतर वहाँ से उठ के भागना चाहा, लेकिन मजबूत गिरफ्त के बायस वो कदम भी ना उठा सकी। उसके बाजों को गिरफ्त में लिए उसने वापस अपनी जानिब खींचा तो सीधी उसकी आगोश में जा गिरी। ये पीर हवेली जाने का विरद करते करते होंठों ने गर्देजी हाउस जाने का क्यों कर कह दिया। एक हाथ उसके गिर्द हायल किए, दूसरे हाथ की मजबूत उंगलियों से उसके होंठों को छूते हुए उसने तंजिया लहजे में कहा तो उसके मजबूत हाथों की शौक जसारतों पे उथल पुथल होती धड़कनों पे बमुश्किल काबू पाते हुए उसने पूरी हिम्मत मुजतमा करते हुए उसकी जानिब देखा था, क्योंकि गर्देजी हाउस जाने की सूरत में पीर साईं खुद ही मुझे ले जाएंगे। उसने अपने होठों को जुम्बश देते हुए जी गड़ा के जवाब दिया तो वो बेसाख्ता हंस दिया। यार, हंसते हंसते उसने जोर से अपना हाथ पीछा उसके उधरती हुई बात के रद्द अमल पर जो बुंचा के रह गई थी। आप मासूम हो बेवकूफ़, आपको लगता है कि मैं आपके पीर साईं से डर के आपको यहाँ लेके छुप के बैठा हूँ। आपको यूं सीने से लगाए इसने मलहूस अंदाज में इस सब सार किया तो उसकी गिरफ्त में मचलती आप गिने ने सुलग के उसकी जानिब देखा। बिल्कुल वो अपनी बातों से उसे सुलझाना चाहती थी। वो शायद किसी तरीके से हार मान के उसे वापस भेज दे। उप्स, वाकई उस डर ने तो नींदें उड़ा के रख दी हैं मेरी। उसकी आंखों में देखते हुए उसने मानी हिस्क में अंदाज में कहते अपनी बाईं आंख दबाई तो उसके लहजे की जुबानियत समझती वो सर तपा सुर्ख रंगों में नहा गई थी। एक ही नंबर के बेकार और बेशर्म इंसान है आप। अगर कल तक आप मुझे अपने घर या मेरे घर ना लेके गए तो मैं यहाँ से वहाँ भाग जाऊंगी।
पूरी कुव्वत लगा के उसकी गिरफ्त से आज़ादी हासिल करती वो बुलंद आवाज़ में उसे वार्न करने के बाद तेज़ी से वाशरूम में घुस गई। शादी जैसी हरकत के इसी लिए सख्त खिलाफ था, क्योंकि शादी के बाद इंसान के साथ बहुत सारे लग जाते हैं, जैसे बेशरम, बेबाक, बेकार, बेगैरत वगैरह वगैरह। वो वहीं सोफे पे बैठा आदतन बड़बड़ाते हुए अपनी थोड़ी खुजाने लगा था। खैर, मिसिस का ताना दिल को जा लगा है, इसलिए सुस्तर साहब अब जंग आमने सामने होके लड़ते हैं, ज्यादा मजा आएगा। सोफे से खड़े होते वो कदरे बुलंद आवाज में कहता, सीटी की शौक सी धुन बजाते हुए किचन की जाने पड़ गया था, क्योंकि उसे वक्त चाय बनानी थी कि उसकी मिसिस को चाय बहुत पसंद थी। ये और बात थी कि उसके हाथ की बनी चाय आप गिने ने इन 10-12 दिनों में एक दफ़ा भी नहीं पी थी, मगर उसके बावजूद उसके लिए रोज़ चाय बनाया करता था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो किसी रोज़ चाय का बना कप ज़रूर थामेगी। काली से जब वो अपने टाइम फिर बाहर निकली तो गैर मुतवक्के तौर पर सामने उसी की गाड़ी खड़ी थी, जिसे वो कम से कम इस वक्त बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी, मगर खुद पे जब्त करते हुए उसने कदम आगे बढ़ाए। खुले दरवाजे से फ्रंट सीट पे बैठ गई थी। मुझे आज के बाद कॉलेज लेने या छोड़ने मत आइएगा जरगाम चाचू। उसकी गाड़ी की स्टार्ट करने के बाद उसने 2 टोक लहजे में उसे वार्न किया, जिसकी सारी तवज्जो विंड स्क्रीन पे मरकूज थी। शहरे, आज के बाद मुझे चाचू मत बुलाइएगा। इसकी के अंदाजे अल्फाज उसकी स्पार्ट आवाज़ गूंजी तो चेहरे ने सर सीट से जाग लगी। मुझे शौक भी नहीं है आपके साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने का। वो उस हरगिज़ वाली की बात का मतलब नहीं समझी थी। उसे बस यही लगा था कि शायद वो नहीं चाहता था कि उसे मुखातिब करे, इसलिए उसने उसे चाचू बोलने से मना किया था। तभी वो तड़क उठी थी, जबकि उसके कहने पे उसने एक झटके से गाड़ी सड़क के किनारे रोकी तो वो इसकी हरकत पे हैरान होती उसकी जाने मुड़ने ही वाली थी, जब उसने उसके बाजू को अपनी नरम गिरफ्त में लेते हुए उसका रुख अपनी जानिब बढ़ा। जो रिश्ता आपका मुझसे जुड़ चुका है वो आपके ना मानने से खत्म नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात, उसके बाजू को गिरफ्त में लिए वो कदरे उसकी जानिब झुका, संजीदगी से बोलते थमा तो उसकी अचानक कुर्बत वो खुद पे पड़ती, उसकी सांसों की तपश अपनी सांसें तक रोक के बैठी शहरे ठिठकी थी। मैं आपका चाचू हरगिज नहीं हूँ, और जो हूँ इसे खामोशी से समझ लें, क्योंकि मेरा समझाया गया कम अज कम अब आप अभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने इसी संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की तो उसके अल्फाज के मफहूम समझती शहरे को पल में अपने वजूद में से जान निकलती हुई महसूस हुई थी। वो बेसाख्ता उससे फासला बढ़ाती हुई अपने बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश करती, आंखों में खौफ, गुस्सा, नमी, तनफर जैसी मिली जुली कैफियत लिए उसे तकने लगी तो उसकी नम होती आंखों को देख के उसने गहरी सांस भर के उसके बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। इसके बाद शहरे, जो बहुत कुछ कहने का सोच के उस गाड़ी में बैठी थी, वो उसकी हरकत और उसके अल्फाज पे इस कदर बेयकीन और गुमसुम हो चुकी थी कि बकिया रास्ता वो कुछ बोल ही न सकी। जबकि दूसरी जानिब अपनी बाएं हथेली में हनूज उसका नरम और बाजू कलम से महसूस करते वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया था। अजीब से शोर के बायस उसकी गहरी नींद में हलल पड़ा तो उसने आंखें मजीद मींचते हुए करवट बदलनी चाहिए तो मारे दर्द के उसकी नींद भाग से उड़ी थी। नींद से बोझल आंखें खोलते ही उसने इर्द गिर्द का जायजा लेना चाहा, जब सपाट सी मर्दाना आवाज़ पे उसके हवास पूरी तरह बेदार होते तल्ख हकीकत की वादियों में ले आए। मिस इब्राहिम, मेरा ख्याल है कि आपकी नींद पूरी हो चुकी होगी, इसलिए उठ के अब ड्यूटीज़ प्लस बेबी होने की जिम्मेदारियां निभाएं। उसकी स्पाट आवाज़ पे जल्दी से सीधी हुई तो बेआरामी से सोने के बाद गर्दन में उसे दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसे नज़रअंदाज करती वो फौरन अपनी जगह से खड़ी होती। वो नींद के खुमार से सुर्ख होती आंखों में इस्तफसार के रंग लिए उसे देखने लगी थी। मुझे वॉशरूम लेके जाएं, मुझे फ्रेश होना है। उसके कहे पे उसे कमरे की छत खुद पे गिरती महसूस हुई। मामा, मैं वॉशरूम? उसके यूं पूछा गया कि उसके तख्तादार चढ़ने लगा था। वो उसकी जानिब देखती उसकी दुनिया से मावरा कोई चीज़ अलग लग रही थी। जी, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। उसके रंग मजीद तो फक पड़ने लगा था। पहले कैसे चाहते थे? हड़बड़ाहट में उसने बड़ा सा सवाल पूछा, तभी उसने रुख मोड़ते हुए कड़ी निगाहों से उसे घूरा। हवाई जहाज़ पे? सर्द लहजे में मिले जवाब पर वो गहरी सांस लेके आगे बढ़ी थी। वो जान चुकी थी कि ये सब उसने उससे बदला लेने की कोशिश की पहली कड़ी थी। ये वो बात निकाह के बाद फौरन समझ चुकी थी कि उसे हाथ तक जिज करना चाहता था कि उसका बदला भी पूरा हो जाता और उसकी ज़िंदगी भी से भी निकल जाती। उसने आगे बढ़कर व्हील चेयर पहले उसके बेड के नज़दीक की और फिर चेहरे पे स्पाट तासुरात से जाए उसने एक बाजू उसके गर्दन के गिर्द हायल किया और दूसरा बाजू सामने से कमर के गिर्द हायल करके उसे सहारा देने की कोशिश की, मगर वो उसे टस से मस भी ना कर सकी, क्योंकि वो पहले उसकी मदद के लिए बॉडी को मूव करता था, लेकिन इस वक्त वो स्टिल बैठा उसकी हिम्मत जज कर रहा था। वो गहरी सांस भरती एकदम से
ایک انچ مزید اس کے نزدیک کھسکی اور اپنی پوری جان لگا کے اسے ویل چیئر پہ بٹھانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اتنی سی کوشش میں اس کا سانس پوری طرح سے پھول چکا تھا، کیونکہ اس جیسے توانا مرد کو اس کی رضا کے بغیر حرکت کروانا اس کے لیے مشکل تھا۔ چیئر گھسیٹتے ہوئے وہ اسے واش روم لے کے گئی۔ بہت ہی نامحسوس انداز میں اس کی ویل چیئر پہ لگی بیل کا بٹن آہستگی سے دبا دیا۔ یہ بٹن اس کے لیے متعین ملازم کو نیچے سے بلانے کے لیے اس کی چیئر پہ لگوایا گیا تھا۔ آج شومئی قسمت اس کے کام آ گیا تھا۔ اگلے چند سیکنڈ میں ہی اس کا ملازم دروازے میں کھڑا اجازت مانگ رہا تھا۔ جی آ جائیں آپ سمر، آپ ذوالنورین کو فریش ہونے میں مدد دیں، میں تب تک اس کے لیے ناشتے لے آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ یا سمر کچھ کہتے وہ تیز تیز بولتی بنا ہاتھ دھوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کی اس قدر چالاکی پہ وہ ملحوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے بند دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے اپنی منتشر سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ بظاہر اس نے خود پہ بے تاثر پن کا ہول چڑھایا ہوا تھا، لیکن اس کی اس قدر قربت سے اسے ہراساں کر رہی تھی۔ اس پہ متضاد اسے فریش کروانا۔ گہری سانس بھر کے بمشکل خود کو کمپوز کرتی ہوئی آگے بڑھی اور متوازن چال چلتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ ابھی وہ آخری سیڑھی سے 2-3 سٹیپ اوپر ہی تھی کہ جب اسے دائیں جانب شازمین میر آتی دکھائی دی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، تبھی ہونٹوں پہ تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے وہ اس کے نزدیک آئی۔ کیا ہوا؟ معذور شوہر کی خاطرداری میں شاید رات بھر زیادہ مصروف رہی، جو حالت ایسی بنا رکھی ہے۔ اس کی بکھری حالت پہ گھٹیا انداز پہ چوٹ کرتے ہوئے وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسی تو اس کی چہرے کی رنگت مارے غصے اور احساس توہین دہکنے لگی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس کی بات پہ کوئی رد عمل دیے بغیر وہ خالی لہجے میں سوال گویا ہوئی تو اگلے ہی پل وہ ہنسی۔ میری جان، تمہیں پیسے میں نے ذوالنورین میر کو اپنے جان میں پھنسانے کے لیے دیے تھے، تو وہ تو تمہارے پیار میں اتنا پاگل ہو جائے کہ یہ گھر چھوڑ دے، لیکن شاید تم اسے غلط لے کے پیار میں الجھا کے اس پیلس کے گڑھے مردے اکھاڑنے چلی ہو تھی تو چپتے انداز میں بولتی ہوئی اس نے ڈرامائی سا وقفہ لیا تھا۔ میں نے تمہاری اس چال باز محبت کو ہی گڑھے میں دفنایا اور تمہارے اسٹوڈنٹ کو بس اتنا بتایا کہ تمہاری ٹیچر تمہارے پیار کا سودا کر چکی ہے۔ چہرے پہ فاتحانہ چمک، آنکھوں میں شیطانی سی مسکان، ہونٹوں میں تمسخرانہ تبسم لیے وہ شاید لباس میں ملبوس عورت اسے اس وقت کوئی عورت نہیں بلکہ شیطانی فتنہ ہی دکھ رہی تھی، جو کسی کی عزت نفس اور کردار کا سرے بازار تماشا لگانے کے بعد مسترد سے سرشار تھی۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اسے تکتی چلی گئی اور پھر رسانیت سے ست کہنے لگی، میں نہیں جانتی آپ کا ذوالنورین سے کیا مسئلہ ہے، یا آپ ان گڑھے مردوں کو اکھاڑ جانے سے اس قدر خائف کیوں ہیں؟ میں بس اتنا کہوں گی کہ میں نے خود کے ساتھ کیے گئے آپ کے تمام فعل اللہ کی عدالت میں جمع کروا دیے ہیں، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ رسانیت سے اپنی بات مکمل کر کے وہ اس کا سبکی اور آہانہ سے سیاہ پڑتا چہرہ دیکھے بغیر ہی پلٹی اور کچن کی جانب چل دی۔ وہ پہلے جا کے سنک کی جانب بڑھی اور وہاں اپنا ہاتھ اچھے سے واش کرنے کے بعد ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے چند لمحے کچھ سوچتی ہوئی پھر ملازمہ سے ناشتے کا بولنے ہی لگی تھی کہ زخمی شازمین ایک دفعہ پھر سے منظر پہ نمودار ہوئی تھی، جو اس کی جانب بڑھی تھی۔ نہ تم اس پیلس کی مالک ہو اور نہ ہی وہ تمہارا مزدور شوہر شاگرد، اس لیے تمہارا یہاں میرے گھر میں رہنا ہے تو میرے نوکروں کو حکم دینے کی ضرورت ہرگز کوشش نہ کرنا، بلکہ اپنے اور اپنے شوہر کے کام خود کرو۔ زخمی ناگم بنی شازمین اب کھل کے اپنے روم میں آتی آخری حد تک ڈیگریڈ کرنے کی کوششوں میں لگی تھی۔ بلند آواز میں بولتی شازمین میر کی آواز سن کے اپنے کمروں میں سوئے بہت سے افراد اٹھ کے باہر نکل آئے تھے۔ کیا ہوا شازمین، کیوں اس قدر شور مچا رہی ہو؟ عبدالرحمن میر آنکھوں میں ناگواری لیے وہاں آتے ہوئے بولے تو اس نے بے ساختہ رخ بدلتے ہوئے خود کو ان سب کی نفرت انگیز نگاہوں سے بچانے کی مہم سی سائے کی تھی۔ ہونا کیا ہے؟ تمہارے اس مصیبت بھتیجے کو اس گھر سے نکال پھینکنا چاہتی تھی تو وہ الٹا اس محمل میں لگے پیوند کی طرح ابھی اسے ہمارے سروں پر ہی بٹھا گیا۔ انتہائی سپاک اور بے رحم انداز میں بولتے ہوئے وہ کل کی طرح اب اس کی ذات کی پرخچے اڑا رہی تھی، جب سلیب پہ دونوں ہاتھ سختی سے جمائے وہ ضبط کی آخری حدوں پہ تھی۔ ڈونٹ وری آنٹی، کچھ دن مزید برداشت کر لیں، کیونکہ زیادہ دن اس مونسٹر کے ساتھ ٹک نہیں سکے گی یہ۔ رانیہ نے شازمین میر کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا تو اس تماشے سے بیزار ہوتے عبدالرحمن میر نے نخوت سے سر جھٹک دیا، بھاڑ میں جھونکو انہیں اور ناشتہ لگواؤ۔ جو لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے لیے اپنے گھر کا سکون تباہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں شازمین بیگم، کیونکہ ایسے لوگوں کو جڑ سے کیسے کب اور اتار پھینکنا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ ایک آردار نگاہ ضلع کے وجود پہ آر پار ڈال کر وہ ناگواری سے کہتے ہوئے پلٹ گئے تو باقی سب تماشائی بھی آہستہ آہستہ
झटने लगे। इन सब के जाने के बाद वो अपनी अपनी जात के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटती हुई ब्रिज की जाने बढ़ी और फिर अपनी दहकती हुई कलाई और रुखसार में उठती दर्द की टीसों को नज़रअंदाज किए वो उसके लिए नाश्ता बनाने लगी, जो शायद यहाँ मौजूद बाकी मुकीनों से भी ज़्यादा उससे नफरत करता था। शायद ये नफरत आगे जाके कोई नए पन्ने खोलने वाली थी। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई अपने इर्द गिर्द भागती दौड़ती रंगीन दुनिया से बेनियाज क्लर्क ऑफिस की सीट की जानिब बढ़ रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं हमेशा हर काम में देर क्यों कर देती हूँ। होठ से बड़बड़ाते हुए वो दाएं कंधे पर लटकाए बैग से वॉलेट निकालने की कोशिश करती तेज तेज जा रही थी। ये वॉलेट मेरे बैग के किसी खुफिया कोने में चला गया है। कोप से बड़बड़ाते हुए इसने बैग कंधे से उतारा और उसे खंगालने लगी। हाय मेरा वॉलेट। पूरा बैग खंगालने के बाद जब उसे वॉलेट न मिला तो उसका दिमाग पग से उड़ा था, जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे। ये वॉलेट कहाँ गया? सुबह तो डैड से फीस के लिए कार्ड के लिए इसमें रख कर वॉलेट में रखा था। वो ज़हन दोहराती खुद से गुफ्तगू करती या वापस इसी रास्ते की जानिब भागती वॉलेट तलाश कर रही थी। लेकिन जब उसे कहीं ना वॉलेट मिला तो अब की बार वो सही मानों में परेशान हुई थी। अब मैं फ़ीस कैसे पे करूँगी, चूँकि वो पहले ही इतने दिनों की छुट्टियों के बाद ही यूनी आई थी। आज सेमेस्टर फीस की लास्ट डेट थी और ऐसे ही कार्ड समेत वॉलेट का खो जाना उसे रुहानसा कर गया था। क्या ज़रूरी था कि आज कॉलेज अकेली आती? दिल रफ्तगी से वो सोचती घास पे बैठी थी बेसाख्ता रो दी। तभी उसके माइंड में क्लिक हुआ। वो बाएं हाथ के पूछते आंसू रुखसार से साफ करती हुई अपनी जैकेट की पॉकेट से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगी, लेकिन बंद मोबाइल देख के उसके सामने गोया ज़मीन और आसमान घूम गए थे। या अल्लाह, हर तरफ से नाउम्मीद होने के बाद वो किसी तरह पे खुद पे भी जबर न रख सकी और फूट फूट के रो दी थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो किस कदर मुसीबत में फंस गई। एक्सक्यूज़ मी मिस। वो दोनों हाथों पे चेहरे छुपाए इशारों की तार रो रही थी जब उसको बिल्कुल अपने नज़दीक एक नामानूस सी आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन वो इस वक्त अपने दुख में इस कदर डूबी हुई थी कि उसने तवज्जो देने की जहमत न की कि आया नौवार्द मुहातिब किससे था। एक्सक्यूज़ मी मिस, आप क्यों रो रही हैं? उसकी इस आपकी बार लहजा सवालिया अंदाज में दोबारा उसकी समातों से टकराया और उसके रोने में मजीद तेजी आ गई। यूं ही रोते रोते उसने चेहरे के सामने हाथ उठा के अपने आंसू से लबरेज नसवारी आंखें उठाकर नौवार्द की जानिब देखा तो नसवारी आंखें सुरमई आंखों में उलझ के रह गई थी, जबकि रोती हुई दूरिया बदर के सामने कदरे झुक के खड़ा तलाल जाफर पल पल के लिए इन आंसुओं में भरे नसवारी कटोरों में डूब के उभरा था। आप रो क्यों रही हैं? इस लम्हाती गिरफ्त से खुद को निकालते हुए उसने सर झटकते हुए अपना सवाल दोहराया तो दुरिया की आंखें एक दफ़ा फिर से भर आईं। मेरा वॉलेट खो गया है और मुझे आज अपनी फ़ीस जमा करवानी है। मेरा मोबाइल भी बंद पड़ा, जबकि मेरी कोई यहाँ ऐसी दोस्त भी नहीं है, क्योंकि हम सब कज़न्स ही दोस्त हैं और वो आए सब सारे छुट्टी पे हैं। इस वक्त वो इस कदर परेशानी का शिकार थी कि बिना सोचे समझे यूनिवर्सिटी की लान में घास पे बैठी वो रोती हुई अपने सामने कदरे झुक के खड़े इस शानदार से मगर अजनबी से मर्द को अपनी परेशानी का मौजब बताती चलेगी। आइए मेरे साथ। इसकी सारी कथा सुनने के बाद सामने वाले ने जब फकत इतना ही कहा तो उसने करंट खा के उसकी जानिब देखा और हैरान होगी। कहाँ और क्यों जाऊं मैं आपके साथ? परेशानी एक तरफ, लेकिन उसका दिमाग इतना तो ज़रूर काम कर रहा था कि वो किसी के भी कहने पे कहीं भी नहीं चल सकती थी। फीस जमा करवानी है कि नहीं? उसके दो टोक संजीदा लहजे पे वो गड़बड़ा सी गई थी और हासे होंकपन से उसे देखने लगी, गोया इसकी बात समझने की कोशिश में थी। मिस, अगर आपने फीस जमा करवानी है तो मेहरबानी करके उठ जाएं। उसे हनूस बैठे देख के उसने बमुश्किल खुद पे जब्त करते हुए सर्द लहजे में उसे पुकारा तो हड़बड़ाती हुई उठ खड़ी हुई। मुझे फीस जमा करवानी है, लेकिन मेरे पास वो उसे कहना चाहती थी कि उसके पास पैसे नहीं है। वो किसी तरह से उसके भाई से उसका रब्ता करवा दे, क्योंकि रबहान गर्देजी को तो सभी जानते थे, इसलिए उसका नंबर कहीं से भी मिल सकता था। लेकिन सामने वाले ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले उसकी बात बहुत आराम से कता की। मुझे तलाल जाफ़र कहते हैं और मुझे आप कल यही फ़ीस जमा वापस कर सकते हैं, इसलिए अभी आ जाएं। संजीदगी से कहकर उसने एक जांचती हुई निगाह उसके रोए रोए चेहरे पे डाल के कदम आगे बढ़ाए तो वो भी कुछ सोचती हुई उसके पीछे चल दी, क्योंकि उस वक्त टाइम ज़ाया करने का से बेहतर था कि उसकी मदद ले लेती। वैसे भी वापस करने का अभी तो कह चुका है। जबकि उससे दो कदम आगे चलता तलाल अपने अंदाजे पे मसरूर हो रहा था। उसके ख्याल के तहत रबहान गर्देजी के घर वालों को जाने बिला तलाल जाफ़र कौन था और अवैस जाफिर कौन था। ऐसी आगे ही वहाँ रखी जाती जहाँ रिश्ते हमेशा के लिए जोड़ने हों, जबकि उस रिश्ते की बुनियाद तो रखी ही जा चुकी है। वो उसकी इस तरह की खोखले बयान पे गई थी, इसलिए उसका ख्याल बिल्कुल ठीक ठहरा था और उसकी
इस तरह बेतवजी पे आगे बढ़ते हुए जाते देख कर ख्याल तो ये और बात थी कि इस खोखले की बुनियाद अब एक नया रिश्ता जन्म लेने को बेकरार हुआ था। इंतकाम का रिश्ता या जुनून का रिश्ता, ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर साबित कर सकता था। शहरे को कॉलेज से घर छोड़ने के बाद वापस गया तो वहां से किसी इमरजेंसी की वजह से फौरन तौर पर बिना किसी से मिले दुबई जाना पड़ा था। आज तकरीबन 10 दिन के बाद वहां से थके हुए अंदाज में ड्राइविंग करता हुआ घर की जाने बढ़ रहा था और उसके साथ असद साहब बेशक गार्ड्स या ड्राइवर मुतय्यन कर दें, लेकिन इसकी यही कोशिश होती कि वो गाड़ी खुद ड्राइव किया करें। गार्ड्स के मामले में तो उसने उकता के खामोश ठान ली थी, लेकिन ड्राइवर को वो सहूलत से मना करके खुद ही ड्राइविंग किया करता था। सदर दरवाजे को खोलते उसने लाउंज में कदम रखा तो अंदर से आती बातों और कहकों की आवाज़ पे अंदाज़ा हुआ कि हस्बे मामूल इस वक्त अपनी बैठक की गपशप लगा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए उसने बुलंद आवाज़ में सलाम करते सबको अपनी जानिब मुतवज्जो किया तो अब सब इतने दिनों में बिल्कुल गैर मुतवक्किल तौर पर हंस रहे थे। बड़ों से प्यार लेने के बाद वो एक नरम सी मुस्कान सबके दरमियान पुरसुकून बैठी निगाह पे डालते हुए वो सिंगल सोफे पे बरजुबान हो गया था। आगे बढ़ते हुए नौशे मियाँ ये कहा, तुम अपनी दोनों बीवियों को तनहा छोड़ने के बाद बेथने बैल की मानिंद इधर उधर घूम फिर रहे हो। ईसा जो कि इसी का हम उम्र था उसे देखते हुए शरारत से गोया हुआ तो उसने आंखें सकेटते हुए उसकी जानिब देखा। तुम मेरे पीए कब से अपॉइंटमेंट हुआ है? उसकी संजीदगी से किए गए इस सबसार पर निकाह समेत सभी हंस दिए थे। खातून आपकी फेवर में बोल रहा था, लेकिन सद अफसोस कि उसे हंसते हुए देख के ईसा ने मसनूई तासिफ का मुजाहरा किया तो उसकी हंसी मजीद गहरी हुई थी। इसी लम्हे वह सदर दरवाज़ा खोल के हाल में दाखिल हुई। सभी का ध्यान एक साथ उसकी जानिब मुबज़िल है। आहा, शहरी आई है। चलो शहरी, यह बताओ कि तुम मेरी साइड पे होगी या मेरी इंसल्ट पे हंसोगी? बिना उसे बोलने का मौका दिया ईसा ने बुलंद आवाज़ में कहते हुए उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो मुस्कुराई। ऑफ कोर्स आपकी साइड होंगी चाचू, और वैसे भी इतनी हिम्मत किसकी जो मेरे चाचू स्वीट चाचू की इंसल्ट करे। चूँकि वो जरगाम के आउट ऑफ कंट्री होने से वाकिफ थी, इसलिए अपने महसूस बेफिक्र और खुशकुन अंदाज से गोया हुई थी। उसने अभी तक उसे नहीं देखा था। ये तुम्हारे जरगाम चाचू ने ईसा की मासूमियत से दिए गए जवाब पे उसने करंट खा के एक झटके से अपनी गर्दन घुमाई तो नजर सीधी उसे टकराई जो नेवी ब्लू पैंट के साथ वाइट प्लेन शर्ट से पहने। उसकी आस्तीन ने कोने तक फोल्ड किए स्याह शूज पहने, टांगे कदरे आगे कवर किए, रिलैक्स अंदाज में पिलाई बाएं कलाई पे रिस्ट वॉच पहने, अपने शानदार और सहर अंगेज सरापे के साथ सिंगल सोफे पर बरजमान उसे अपनी बुरी आंखों की गिरफ्त में लिए बैठा अजीब नकाबले फहम तासुरात से दो चार कर गया था। जुखान के रोने की आवाज़ पे उसने गिड़गिड़ाते हुए अपनी नज़रों का जाविया फौरी तौर पर बदला था और फिर हफ्की भरी निगाह ईसा पे डालती वो कंदील के साथ जुड़ के बैठ गई थी। हाय शहरी, अभी तो यार तुमने मेरी साइड लेने का हलफ उठाया था और उसकी इस कदर बेनियाज हरकत पे वो तड़प ही तो उठा था। अब क्यों खामोश होकर बैठ गई हो? अब तो मेरी साइड पे ही रहेंगी ना? उसने टुकड़ा तोड़ जवाब दिया था और उसकी बुजुर्गी भी वो अपनी गुद्दी खुजा के रह गया था। बस साबित हुआ कि ईसा मलक आप बेशक जो मर्जी करते फिरें, लेकिन आपको जरगाम मलक की दोनों बीवियों को कोई फेवर नहीं मिलने वाला। जाजिम ने ईसा की शक्ल देखते हुए एलानी अंदाज में कहा तो उसके अंदाज पे न चाहते हुए भी जरगाम मुस्कुरा दिया और उसकी मुस्कुराहट देख के शहरे फौरन से पहले ईसा की जानिब बढ़ी। मैंने ऐसा भी नहीं कहा चाचू, हैं तो ये फेवर तो बहरहाल इनकी करूँगी ना। बिना उनकी जानिब देखे उसने अपने बयान में रद्द बदल किया तो उसके अमल का पस मंजर जान के बहुत सौ के होंठों पे बेसाख्ता मुस्कान उभरी थी। निगाह खातून, आप भी तो अपने अल्फाज पे नजरसानी कर लें। ईसा ने रुख निगाह की जानिब मोड़ा तो वो खिलखिला उठी थी। उसे अंदाज़ा था कि इस वक्त उसने कौन सी पार्टी की साइड लेनी है। नहीं ईसा भाई, अब एक आपकी फेवर कर रही है तो दूसरी तो इनकी फेवर करने दें। उसने मुस्कुराते हुए इनकार किया तो एक फरमाइशी कहकर उबल पड़ा। मजीद कुछ देर गपशप करने के बाद अपनी जगह से उठा उसने कसदन रुख मोड़े बैठी चेहरे ने तो शक्कर भरा सांस लिया था। मामा चाय कमरे में भिजवा दे, मैं चेंज कर लूँ, समरीन बेगम से कहकर वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ा तो निगाह समरीन के बेगम के इशारे करने पर अपनी जगह से उठा और किचन की जानिब चल दिया। शहरी चाय बनानी आती है तुम्हें? वो कुछ सोचते हुए अरसम ने अचानक उसे मुखातिब किया, हालांकि वो उसका जवाब जानता था। नो, और प्लीज़ मुझे डैड की तरह चाय बनाने पे लेक्चर हरगिज़ ना दीजिएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी चाय नहीं पसंद। वो फौरन दोनों हाथ बुलंद करती हुई बोली। वो न जाने क्यों जोर से हंस दिया था। ऐसी बातें नहीं